Hello, guys. Welcome to the post independence political history of Pakistan. Today, we will discuss the last days of Quaid Azam, the first Governor General of Pakistan. From 1930s, Jinnah suffered from tuberculosis. Only his sister and a few other close to him were aware of his condition. Jinnah believed public knowledge of his lung ailments would hurt him politically. 1930 के दौर से जो था कायद अज़म ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ थे और उन्होंने ये बीमारी बहुत मुखालिफिन से छुपाई थी। सिर्फ उनकी बहन फातिमा जनाह और चंद करीबी साथी थे जिनको इसके बारे में पता था, क्योंकि जनाह साहब को पता था कि अगर वो ये बीमारी नहीं छुपाते तो उनके मुखालिफिन फिर इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह से Stanley Wilpot notes that in 1938 letter he wrote to a supporter that you must have read in the papers how during my tours I suffered, which was not because there was anything wrong with me, but irregularities of the schedule and overstrain told upon my health. अच्छा, ये स्टेनले वुलपट ने भी फिर इसको नोट किया कि 1938 से उन्होंने एक सपोर्टर को ये बता दिया था कि उनकी सेहत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। Many years later, Mountbatten stated that if he had known Jinnah was so physically ill, he would have stalled, hoping Jinnah's death and would avert partition. Fatima Jinnah later wrote, even in his hour of triumph, the Quaid was gravely ill. He worked in a frenzy to consolidate Pakistan, and of course, he totally neglected his health. अच्छा, माउंट बेटन जो थे वो भी उन्होंने भी बाद में कहा था कि अगर उनको पता था कि जिन्ना साहब की तबीयत और सेहत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, तो वो पार्टीशन को जो है थोड़ा डिले कर देते हैं, इसी उम्मीद पे कि शायद जो है कायद अज़म ना होते तो फिर पार्टीशन को डिले करके जो है ये हिंदुस्तान को तकसीम से बचा सकते थे। और फिर फातिमा जनाह ने भी एक जगह पे लिखा है कि जो अ, सेहत जिस वक़्त उनकी बहुत ख़राब थी, उसके बावजूद भी जो थे कायद अज़म बहुत सख्त मेहनत करते थे और पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी सेहत जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी थी। Wolpert writes that Jinnah worked with a tin of Craven, a cigarette at his desk, of which he had smoked 50 or more a day for the previous 30 years, as well as a box of Cuban cigars. अच्छा, अब यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि कायद अज़म पर डे 50 से ज़्यादा सिगरेट पीते थे और ये इसके साथ जो है क्यूबन सिगार का एक बॉक्स भी पी जाते थे और ये 30 साल से ये रूटीन जारी रही। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि कायद अज़म की सेहत कितनी ख़राब हो चुकी होगी। As his health got worse, he took longer and longer rest breaks in private wing of government house in Karachi, where only he, Fatma, and the servants were allowed. In June 1948, he and Fatma flew to Quetta, where the weather was cooler than in Karachi. अच्छा, जैसे ही उनकी सेहत ख़राब होती गई, वो उतने ही प्राइवेट लाइफ में प्राइवेसी रखते गए और सिर्फ उनके क्लोज एम्प्लॉइज़ जो थे वो अलाउ थे और फातिमा जनाह जो थे वो सिर्फ उनकी रहाइश तक जो है उनको एक्सेस थी, बाकी किसी को इजाज़त नहीं थी। तो फिर 1948 में जो है उनको क्वेटा ले जाया गया, क्योंकि वहाँ का मौसम जो था वो कराची की निस्बत जो है ठंडा था, तो उनको क्वेटा ले जाया गया। अच्छा, स्पीच एट क्वेटा स्टाफ कॉलेज ऑन June 14, 1948, Jinnah visited the Army Staff College, Quetta, and spoke to the army officers present. He was frail and weak and had only 3 months to live, but his words had the ring of authority, as always, and should be the starting point of history of civil-military relations in Pakistan. अच्छा, जिन्ना साहब जो थे वो फिर जून के महीने में 1948 14 जून 1948 को उन्होंने क्वेटा स्टाफ कॉलेज का विज़िट किया। अच्छा, इसी विज़िट में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के लिए जो है वो उन्होंने पहले से एक कानून या एक इशारा दिया था कि ये कैसे होने चाहिए।
अच्छा, अब ज़रा स्पीच पे गौर करें। यू along with the other forces of Pakistan are the custodian of the life, property and honor of the people of Pakistan. One thing more, I am persuaded to say this because during my talks with one or two very high ranking officers I discovered that they did not know the implications of the oath taken by the troops of Pakistan. I want you to remember। अच्छा, उनको पहले से दो तीन ऑफिसर्स थे, उनके स्टाइल से उनको पता चल गया था कि ये सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो फिर that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan, who is the Governor General, and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position। तो उन्होंने कहा था कि ये आप लोगों की आर्मी को जो ऑर्डर मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता, बल्कि एग्जेक्टिव हेड की तरफ से मिलता है। और आर्मी को तंबीह की कि आप जो है पाकिस्तानी अवाम के इज़्ज़त और प्रॉपर्टी ऑनर इसके जो है कस्टोडियंस हो बाकी फोर्सेस की तरह। फिर आगे कहते हैं, डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्मड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted। अच्छा, आर्मी से एक ओथ ली जाती है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और कोई सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे। तो कायद अज़म ने फिर यहाँ पे उनको ये चीज़ याद दिलाई कि अपनी ओथ के साथ जो है वफादारी दिखाएं, जो अहद आप लोगों ने लिया था। और फिर ये कोटेशन जो है ये उनकी बहुत ज़्यादा कोट की जाती है कि डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्मड फोर्सेस, आप लोग जो है पीपल के सर्वेंट्स हों। और ये पॉलिसी मेकिंग जो है वो आर्मी का काम नहीं, बल्कि वो सिविलियंस का काम है। अच्छा, लास्ट few public events, he returned to Karachi for 1 July opening ceremony for the State Bank of Pakistan, at which he spoke a reception by the Canadian Trade Commissioner that evening in honor of Dominion Day was the last public event he attended। अच्छा, ये कायदे आज़म की लास्ट पब्लिक इवेंट थी, इसके बाद उन्होंने कोई लास्ट पब्लिक इवेंट अटेंड नहीं की। On 6 July 1948, Jinnah returned to Quetta but at the advice of doctors, soon journeyed to an even higher retreat at Ziyarat। क्वेटा के बाद जो है, वैसे तो क्वेटा लौट आए, लेकिन डॉक्टरों ने उनको कहा कि आप जो है इससे भी ठंडी जगह यानी ज़ियारत चले जाएं। टेस्ट्स confirmed tuberculosis and also showed evidences evidence of tests advanced lung cancer। लंग ट्यूबरक्लोसिस के बाद जो है लंग कैंसर भी कंफर्म हो गई। ही वॉज ट्रीटेड विद द न्यू मेरिकल ड्रग ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन बट इट डिड नॉट हेल्प। अच्छा, एक मेरिकल ड्रग जो है ये भी उन पे उनको दी गई ताकि इससे उनकी सेहत बेहतर हो सके, लेकिन इसने भी कोई काम नहीं दिखाया। He was moved to the lower altitude of Quetta on 13 August, the eve of Independence Day, for which a ghost written statement for him was released। 13 अगस्त 1948 को कायद अज़म की तरफ से एक गोस्ट रिटन स्टेटमेंट रिलीज की गई। उन्होंने फिर भी कोई पब्लिक इवेंट अटेंड नहीं की। Despite an increase in appetite, he then weighed over just 36 kg. It was clear to his doctors that if he was to return to Karachi in life, he would have to do very soon. So very soon। अच्छा, उनकी सेहत जो है वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि सिर्फ 36 kg, भूख भूख भी बढ़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उनका वज़न जो है वो सिर्फ 36 kg रह गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि अगर आपने ज़िंदा रहना है तो आपको कराची जाना होगा। However, was reluctant to go, not wishing his aides to see him as an invalid on a stretcher। अच्छा, इस वक्त भी उनके मुखालिफिन थे जो ये चाहते थे कि कायद आज़म को ज़िंदा नहीं देखना चाहते थे, और वो इसी इंतज़ार में थे कि कब कायद आज़म फौत हो गए। तो कायद आज़म जो है ये फिर भी अपने मुखालिफिन को जो है ये मौका नहीं देना चाह रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि उनके मुखालिफिन उनको स्ट्रेचर पे बेजान और बेयार व मददगार पड़ा हुआ देख लें।
By 9 September, Jinnah had also developed pneumonia. Doctors urged him to return to Karachi where he could receive better care, and with his agreement, he was flown there on the morning of 11 September. अच्छा नमोनिया भी उनको हो गया 9 सितंबर को, तो फिर 11 सितंबर को उनको कराची शिफ्ट किया गया. Dr. Ilahi Baksh, his personal physician, believed that Jinnah's change of mind was caused by foreknowledge of death. The plane landed at Karachi that afternoon to be met by Jinnah's limousine and an ambulance into which Jinnah's stretcher was placed. अच्छा डॉक्टर इलाही बख्श जो उनके पर्सनल फिजिशियन थे, वो कह रहे थे कि जना साहब जो है उन्होंने अपना इरादा इस वजह से चेंज किया कि उनको पता चल गया था कि वो और ज़िंदा नहीं रह सकते, तो उनको कराची जो है मूव किया गया. वहाँ पे जना साहब की अपनी लिमोजीन खड़ी थी और साथ में एक एम्बुलेंस मंगवाई थी. The ambulance broke down en route into two, and the Governor General and those with him waited for another to arrive. He could not be placed in the car as he could not sit. अच्छा आप ये देखिए, एक वज़ीर के पीछे कई कई गाड़ियों के काफ़िले चलते हैं, लेकिन उस वक़्त मुल्क के बानी, जिस इंसान ने मुल्क के लिए अपनी सेहत कुर्बान कर दी और इस मुल्क को आज़ाद किया, उनके लिए सिर्फ एक एम्बुलेंस भिजवाई गई. वो एम्बुलेंस भी ऐसी ही थी जो रास्ते में ही ख़राब हो गई. अच्छा उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस जो थी वो काफ़ी देर बाद जो है पहुंची, जबकि कायद आज़म जो थे वो गाड़ी में बैठ नहीं सकते थे क्योंकि इस वजह से उनको गाड़ी में नहीं लेके जाया गया. They waited by the roadside in oppressive heat as trucks and buses passed by, unsuitable for transporting the dying man and with their occupants not knowing of Jinnah's presence. अच्छा सख्त गर्मी में वो रोड के किनारे जो है वो उनकी एम्बुलेंस खड़ी थी, बसें और ट्रकें रास्ते में जा रहे थे, उसकी वजह से जो है मट्टी उड़ रही थी, तो वो उनकी सेहत के लिए और ख़तरनाक था. फिर भी जो है वो एक घंटे तक इंतज़ार करते रहे. आफ्टर एन आवर द रिप्लेसमेंट एम्बुलेंस केम and transported Jinnah to government house, arriving there over 2 hours after the landing. आखिरकार उन्होंने कायद आज़म पे वो एहसान कर ही दिया कि उनके लिए दूसरा एम्बुलेंस पहुंच गया और उनको 2 घंटे के बाद जो है गवर्नमेंट हाउस पहुंचा दिया गया. Jinnah died later that night at 10:20 p.m. at his home in Karachi on 11 September 1948 at the age of 71, just over a year after Pakistan's creation. Jinnah was buried on 12 September 1948 amid official mourning in both India and Pakistan. A million people gathered for his funeral led by Shabir Ahmad Usmani. करीबन 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए और शबीर अहमद उस्मानी साहब ने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया. इंडियन गवर्नर जनरल राजगोपालचारी cancelled an official reception that day in honor of the late leader. अच्छा इंडियन गवर्नर जनरल राजगोपालचारी ने एक ऑफिशियल रिसेप्शन जो है उसको भी कैंसिल कर दिया कायद आज़म के सोग में. और जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, स्टेटेड अपॉन जिनाह डेथ, हाउ शैल वी जज हिम, I have been very angry with him often during the past years, but now there is no bitterness in my thought of him, only a great sadness for all that has been. He succeeded in his quest and gained his objective, but at what a cost, and with what a difference from what he had imagined. The economist Yasmin Niaz Mahiuddin rightly notes in her study of Pakistan, although Pakistan was born in a bloodshed and turmoil, it survived in the initial and difficult months after partition only because of the tremendous sacrifices made by its people and the selfless efforts of its great leader. इसी के साथ जो है कायद अज़म साहब इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए और हमारा आज का लेक्चर भी इसी के साथ ख़त्म होता है. अगले लेक्चर में फिर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.